پاکستان کے خلاف برطانوی سرزمین کے استعمال پر برطانوی حکومت کا رد عمل سامنے آ گیا۔ برطانوی وزارت داخلہ نے کہا عوام کو ہراساں کرنے اور خوف پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف پولیس کو کارروائی کا مکمل اختیار ہے۔ نفرت انگیزی اور عوام کو ڈرانے دھمکانے سے متعلق جرائم پر قانون پوری سختی سے نافذ ہوگا۔ پرامن احتجاج اور عوامی تحفظ کے درمیان توازن برقرار رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ایران پر امریکہ کے حملوں میں شدت۔ امریکہ کی جنوبی ایران میں پلوں اور ریلوے اسٹیشنز پر بمباری، فضائی اور بحری اڈوں اور ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا۔ صوبہ ہرمزگان، بندر عباس، اہواز اور بوشہر میں عوامی تنصیبات پر بمباری۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ کے تازہ حملوں میں جنوبی ایران کے 5 پلوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی شہر کے ہوائی اڈے اور بندر عباس کو شیراز سے ملانے والے پل کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹ کام کی حملوں کی تصدیق، کہا ایران کے خلاف بڑے حملوں کی تازہ کارروائی مکمل کر لی۔ امریکی جنگی طیاروں، ڈرونز اور جنگی بحری جہازوں نے حملے کیے ہیں۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کے جوابی حملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کویت میں امریکی فوجی لاجسٹک سپورٹ سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ کویتی حکام کے مطابق ایرانی میزائلوں اور ڈرون حملوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ دوحہ میں ایک بار پھر کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ بحرین میں بھی سائرن بج اٹھے۔ قطر میں ناکارہ ایرانی میزائل کے ٹکڑے لگنے سے ایک بچہ زخمی۔ چین نے امریکہ اور ایران سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی اپیل کر دی۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا تمام فریق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کریں، مذاکرات جاری رکھیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ برنٹ کروڈ کی قیمت $84 فی بیرل سے زائد ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $79 فی بیرل سے اوپر۔ اماراتی تیل کی قیمت $77 فی بیرل سے زائد ہو گئی۔ پیٹرول سستا ہوگا، مہنگا ہوگا یا قیمت برقرار رہے گی؟ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان آج متوقع۔ اس وقت 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت $310.71 ہے۔ وزیر اعظم کی پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پر سخت کارروائی کی ہدایت۔ اجلاس میں خطے میں کشیدگی کے ملکی معیشت پر اثرات کا جائزہ۔ شہباز شریف نے کہا کشیدگی بڑھنے سے معیشت متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ سادگی مہم کی طرح کفایت شعاری کو قومی سطح پر اپنانا ہوگا۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کے پیش نظر ذخیرہ اندوزی کا خدشہ۔ اوگرا نے نیشنل کوآرڈینیشن اینڈ مینجمنٹ کونسل اجلاس میں نشاندہی کر دی۔ وفاقی وزیر احد چیمہ کی زیر صدارت اجلاس میں گندم اور پیٹرول کی صورتحال کا جائزہ۔ منافع خوری کرنے والی پیٹرولیم کمپنیوں کے خلاف سخت ایکشن کی ہدایت۔ مشیر خزانہ خرم شہزاد نے کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر مقرر کرنے کا نظام کئی ممالک میں رائج ہے۔ مجوزہ نظام سے تیل کی ذخیرہ اندوزی میں کمی آئے گی۔ اس نظام سے ممکن ہے کہ مختلف شہروں میں تیل کی مختلف قیمتیں ہوں۔ ہم نیوز کے پروگرام صبح سے آگے میں گفتگو۔ حکومت چاہتی ہے کہ اداروں کو بااختیار بنائے اور اوگرا کے معاملے میں بھی حکومت کم سے کم مداخلت چاہتی ہے۔ امریکہ نے ایران کی توانائی تنصیبات پر حملہ کیا تو باب المندب بند کر دیں گے۔ ایران نے یمن کے اتحادی حوثی رہنماؤں کو ہدایت کر دی۔ رائٹرز کا دعویٰ، کہا باب المندب بند ہونے سے تیل کی ترسیل مزید متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکہ ایران نے آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل کی ترسیل جلد بحال نہ کی تو دنیا کو توانائی کے شدید خدشات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے سربراہ نے خبردار کر دیا، کہا تیل کی فراہمی کا تحفظ نہایت اہم مسئلہ ہے۔ آئندہ چند ہفتوں میں صورتحال بہتر نہ ہوئی تو پریشان کن صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا غریب اور متوسط طبقے کو چھت کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پروگرام کے تحت شہریوں کو 5 لاکھ کا قرض ملے گا۔ قرض 9 سال کی مدت کے لیے ہوگا۔ پہلے 3 ماہ قرض لینے والوں کو کوئی قسط نہیں دینی ہوگی۔ اس کے بعد ہر ماہ صرف 4,700 روپے کی قسط ادا کرنا ہوگی۔
सिंध हुकूमत सूबे के 2,75,000 गरीब खानदानों को मुफ्त सोलर होम सिस्टम्स फराहम करने का फैसला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास में 18.2 अरब रुपए के सोलर होम सिस्टम मंसूबे का तफसीली जायजा। वजीर आला ने कहा, हर मुस्तहिक खानदान को 180 वॉट का सोलर पैनल, बैटरी, पंखा और LED लाइट्स दी जा रही हैं। वजीर खारजा इसहाक डार की शंघाई में चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात। पाक चीन बाहमी ताल्लुकात, दो तरफा ताउन और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। तिजारत, सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, डिजिटल मईशत और AI में ताउन पर इत्तफाक। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में वफ्द के हमरा शिरकत। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस क़याम के मुआहदे पर भी दस्तखत। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, ईरान ने आबनाए हुर्मुज में तिजारती बहरी जहाजों पर फायरिंग की तो ख़ुमियाजा भुगतेगा। अमरीका ने हालिया हमले MOU की खिलाफ वर्जी पर किए, मगर अमरीका तेहरान के साथ सिफारतकारी के लिए भी हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि ईरानियों ने सदर ट्रंप पर वाज़े किया है कि वो अब भी मुआहिदा चाहते हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अपना हॉर्मोज जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगी। ईरानी मुसल्लह अफवाज का बयान। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, अमरीका अपना हॉर्मोज में सिक्योरिटी गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। खलीज मुमालिक अमरीका को ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत न दें। इसराइल की ईरान अमरीका अमन मुआहिदा खत्म करवाने की साजिश। अमरीकी नायब सदर ने इंकशाफ कर दिया। कहा, इसराइल अमरीका को मुज़ाकरात के रास्ते से हटाना चाहता है। इसराइली हुक्काम ने अमरीकी अवाम की राय बदलने की कोशिश की। अमन मुआहिदा सबोताज करने पर भारी रकम खर्च की गई। इसराइली मुहिम के बावजूद अमरीकी मफाद को तरजीह दूंगा। मुज़ाकरात की मुखालिफत करने वालों के पास कोई हकीकत पसंदाना मंसूबा नहीं। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए जमीनी फौज नहीं भेजेंगे। कतर ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। इसराइली मीडिया में शाया झूठी खबरों की तरदीद। कहा, ऐसे इल्जामात कतर को इस मामले में घसीटने की कोशिश है। कतर अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशों और दोहा के किरदार को मुतासिर नहीं होने देगा। ईरान आबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल नहीं रखता। अमरीकी वजीर जंग का दावा। अमरीकी फौज ने ईरान की बहरी नाकाबंदी से मुतालिक ताज़ा मालूमात जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी उबूर करने की कोशिश करने वाले 3 जहाजों का रुख मोड़ दिया। अहकामात पर अमल न करने वाले एक जहाज को नाकारा बना दिया। नाकाबंदी पर अमल दरामद के लिए खलीज ओमान में एक जहाज की तलाशी ली। अमरीकी वजीर जंग ने जहाज पर कार्रवाई की तस्वीर जारी कर दी। पाकिस्तान GSP प्लस से सबसे ज्यादा मुस्तफीद होने वाला मुल्क। यूरोपीय कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, 2024 में पाकिस्तान की 7.5 अरब यूरो की बरामदात रहीं। पाकिस्तान ने तमाम 27 बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस की तौसीक की। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, घरेलू तशद्दुद के तदारुक समेत दीगर कानून साजी को नुमाया पेशरफ्त करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से DC मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद उस्मान ताहिर की मुलाकात। सांझी सब्जी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट को दीगर अजला के लिए काबिल तकलीद करार दिया। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को अपने अजला में मंसूबा शुरू करने की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ के देही और शहरी इलाकों में खाली अराजी में सब्जी काश्त की जा रही है। पाकिस्तान की पहली रो शिपमेंट से 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां कराची पहुंच गईं। वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा, जदीद बंदरगाही सहूलियात से पाकिस्तान की तिजारती सलाहियत मजीद मुस्तहकम होगी। लाहौर में दरियाए रावी में डूबने वाले बच्चे की लाश निकाल ली गई। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक गुज़श्ता रोज बच्चा दरियाए रावी में नहाते हुए डूब गया था। वालिद ने कहा, बेटा अपने कजन्स के साथ दरिया पर गया था। कानपुर में नहर में 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से वसी इलाका ज़ेरे आब आ गया। खड़ी फसलें तबाह, कई देहात भी पानी की लपेट में आ गए। पानी घरों में दाखिल, मुतासिर अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। कई अफराद ने छतों पर पनाह ली।
हुकूमत का यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। रेड लाइन BRT मंसूबे पर सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शर्जील मेमन की मुतालिका इदारों को मुकर्ररा मुद्दत में काम मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, रेड लाइन BRT की बरवक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अफगान सरहदी रास्तों से हमसाया ममालिक में मुनशियात की स्मगलिंग। ताजिक इंसदाद मुनशियात एजेंसी की रिपोर्ट जारी। ताजिकिस्तान से मुंसलिक अफगान सरहदी इलाके मुनशियात स्मगलिंग के अहम तरीन रास्ते बन चुके हैं। ताजिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने रवां साल 17 अफगान स्मगलर्स हलाक जबकि 18 गिरफ्तार किए। अफगान स्मगलर्स से 601 किलोग्राम से जायद मुनशियात बरामद कर ली गईं। चीन अमेरिका में इलेक्शन डेटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर अमेरिकी इंतखाबात में मुदाखलत करने का इल्जाम। इलेक्शन से मुताल्लिक खुफिया दस्तावेजात फौरी जारी करने का हुक्म। अमेरिकी कौम से खिताब में कहा, इलेक्शन में चीन ने 22 करोड़ वोटर्स का डेटा हैक किया। चीनी हुकूमत चाहती थी कि मैं इलेक्शन हार जाऊं। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस और FBI मामले की तहकीकात करे। अमेरिका में इंतखाबात को कई तरह के खतरात का सामना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर अंदरूनी मामलात पर जुआ खेलने पर मुअत्तल। बगैर तनख्वाह के जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक गैब्रियल पेरेज पर इल्जाम है कि वो सदर ट्रंप की तकारीर का मुसव्वदा पहले ही पढ़ लेता था। इसमें मौजूद अहम और हसास मालूमात का इस्तेमाल करके शर्तें जीता करता था। सदर ट्रंप इस मामले से पूरी तरह बाखबर हैं और वो उसे इंतहाई अफसोसनाक और एक रुसवाई तस्वर करते हैं। लंदन के मेयर सादिक खान के लिए एक और एजाज। बरतानिया के ऐवान बाला के ताहयात रुकन मुकर्रर। मेयर लंदन की जिम्मेदारियां जारी रखने के साथ हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन भी होंगे। इटली में पुल गिरने के केस में साबिक मोटरवे सरबराह को 12 साल कैद की सजा। 2018 में पुल बारिशों के दौरान गिर गया था। पुल पर मौजूद गाड़ियां और ट्रक नीचे गिरने से 43 अफराद हलाक हुए थे। स्पेन के जंगलात में लगी आग बेकाबू। मुतासरा इलाके से 600 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। माहिरीन के मुताबिक शदीद गर्मी और खुश्क मौसम के बायस आग तेजी से फैल रही है। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। कनाडा के जंगलात में आतिशज़दगी के असरात फीफा वर्ल्ड कप फाइनल पर भी पड़ने का खदशा है। आग के बायस उठने वाला धुआं तेजी से न्यूयॉर्क की जानिब बढ़ने लगा है। न्यू जर्सी स्टेडियम के गिरदोनवाह में भी आलूदगी में इजाफा। स्पेन या अर्जेंटाइन, मेसी या यामाल, फुटबॉल की दुनिया का अगला हुक्मरान कौन होगा? फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मार्का दुनिया का सबसे बड़ा टाकरा होगा। दोनों टीमें इतवार को रात 12 बजे न्यूयॉर्क में आमने सामने होंगी। दुनिया के सबसे मकबूल खेल का सबसे बड़ा मुकाबला। स्पेन और अर्जेंटाइन ने फाइनल की तैयारियां शुरू कर दी। स्पेन की टीम की न्यू जर्सी में ट्रेनिंग, अर्जेंटाइन टीम का अटलांटा यूनाइटेड ट्रेनिंग सेंटर में खुसूसी सेशन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड कप का फाइनल स्टेडियम में जाकर देखेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप को फाइनल का बेचैनी से इंतजार है। सदर ट्रंप फीफा के ऑफिशियल इस्तकबालिया में भी शिरकत करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मैच की टिकटों की कीमतों को पर लग गए हैं। कम से कम कीमत 20,50,000 रुपए मुकर्रर। VIP टिकट की कीमत 85 लाख रुपए के करीब पहुंच गई। न्यू जर्सी का स्टेडियम 82,500 शौकीन की मेजबानी के लिए तैयार। मेसी की गोद में उठाया बच्चा फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में मेसी का मुकाबला करेगा। 18 साल पहले ली गई मेसी और लामीन यामाल की तस्वीर वायरल। 2007 में 20 साल के मेसी ने चंद माह के यामाल को गोद में उठाया था। FC बार्सिलोना के यूनिसेफ से ताउन